Good morning, students, and welcome you all for this fantastic lecture for deductions from salary income. So, what we have seen earlier is basic salary, bonus, fees, commission, advance salary, arrear salary, all are fully taxable parts of salary income. Then we have seen the rules for allowances. Along with that, we have seen rules for perquisites, that is what are taxable and what are not taxable. Along with that, what we have seen is provident fund, gratuity and pension. And our next focus is deductions from salary income. The income tax is generous. It gives certain deduction as well to the assessee. So let's see all those deductions. It is given as deductions from salary income or deductions under section 16. So students, what are these deductions? There are total 3 deductions as far as salary income deductions are concerned. Number 1, it is standard deduction. It is applicable under section 16 subsection 1. This deduction is available for all salaried income people. And how much is the deduction applicable, students? It is rupees 50,000 per annum. This is a recent update, students. Earlier this deduction was not in picture before assessment year 2018-19. अभी के लिए applicable है, पहले ये था ही नहीं. तो पहले क्या था? Earlier there used to be deduction, number 1 for transport allowance for employee, and another one is reimbursement of medical expenses. 2018-19 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स ने या फाइनेंस बजट में आप बोल सकते हैं, ये दोनों डिडक्शन स्क्रैप किए गवर्नमेंट ने और उनके बजाय ये डिडक्शन डाला, स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉई. दिस इज इन लीव ऑफ, इन रिप्लेसमेंट ऑफ number 1 medical reimbursement for employees, and number 2 transport allowance which is available as deduction 1600 per month for every employee. तो ये दोनों डिडक्शन स्क्रैप करके स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी दिया है. तो अभी के लिए हमें याद रखना है कि सैलरी इनकम में हमें पहला डिडक्शन देना है, दैट इज standard deduction, and always applicable rupees 50,000 per annum for every assessment year. Next deduction applicable under this head is entertainment allowance. We have seen entertainment allowance is exempted under section 16 subsection 2 as a second amount of deduction under salary income. There are 2 rules. Number 1, it is applicable only for government employee. यानी एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट होता है तो ये डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. वो भी कैसे मिलेगा? द प्रोसीजर इज गिवन हियर. इनिशियली एंटायर अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी एडेड इनटू द टैक्सेबल पार्ट एज पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी. यानी जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है स्टूडेंट्स, पहले उतना हम ऐड करेंगे, उसको पूरा टैक्सेबल बताएंगे ग्रॉस सैलरी में. फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर क्वेश्चन में दिया है 2000 पर मंथ, then we are going to add it as 2000 per month multiplied by 12. So 24,000 हम टैक्सेबल बोल के ऐड करेंगे, ग्रॉस सैलरी में उसका टोटल लेंगे. ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16. उसमें पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन हम देंगे. लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है. तो अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो बाय रूल हाउ दिस डिडक्शन इज एप्लीकेबल? दिस डिडक्शन इज एप्लीकेबल एज लिस्ट ऑफ बिलो 3. नंबर 1 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, नंबर 2 एब्सोल्यूट amount of rupees 5,000, and number 3 20% or 1/5 of basic salary. ये तीनों में से जो लोअर होगा that will be given as deduction. मतलब ऊपर आपने लिखा 2000 पर मंथ इंटू 12, 24,000 लिखा आपने, और नीचे ये तीनों में से लोअर जो होगा वो डिडक्शन देंगे. That is actually ये received rupees 5,000 per annum और 20% ऑफ बेसिक सैलरी और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी. ये तीनों में से जो मिनिमम आएगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 16(2) में और इसको माइनस करेंगे. For more clarity, when we'll be solving sums, I'll be telling you. तो पहले ऊपर ऐड करना है as it is, जितना दिया उतना, और नीचे डिडक्शन देना है by rule as per section 16(2). That is number 1 actually you received, number 2 absolute amount of rupees 5,000 per annum, and number 3 20% और 1/5 of basic salary. ये तीनों में से जो लोअर आएगा वो माइनस करेंगे नीचे अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). दूसरा डिडक्शन इज नॉट अलाउड फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय. अगर यही एम्प्लॉय प्राइवेट है तो ऊपर जैसे गवर्नमेंट के लिए हमने 2000 इंटू 12 करके ऐड कर दिया था, तो प्राइवेट के लिए भी उसी तरह से ऐड करना बेटा. 2000 पर मंथ इंटू 12, 24,000 आएगा ग्रॉस सैलरी में, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) में आएगा नील. क्यों? बिकॉज एज एम्प्लॉय इज प्राइवेट एम्प्लॉय डिडक्शन इज नॉट अप्लीकेबल. सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन देयर. नंबर 3 डिडक्शन विच इज ये जॉब लगने की खुशी में जो टैक्स दिया हुआ था. स्टूडेंट्स डू रिमेंबर इनकम टैक्स इज डिफरेंट, अनदर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिफरेंट. ये टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट. हम इसको बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, जॉब लगने की खुशी में जो टैक्स दिया हुआ था दैट इज कॉल्ड एज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स. हाउ मच इज द डिडक्शन एप्लीकेबल? यू कैन सी, एंड एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 16(3). तो डिडक्शन कितना है? डिडक्शन इज अलाउड पेड बाय एम्प्लॉई एज लीस्ट ऑफ बिलो 2.
अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो लीस्ट ऑफ बिलो टू ये डिडक्शन अप्लीकेबल होगा. नंबर 1, एक्चुअल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय और ₹2,500 पर annum whichever is lower. मतलब अगर एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है, असेसी प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है, तो उसको डिडक्शन कितना मिलता है बेटा? जितना उसने पे किया या 2,500 पर एनम. मतलब प्रोफेशनल टैक्स अपने 2,500 पर एनम से ज्यादा पे करना एक्सपेक्टेड नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पे करना चाहिए. That is how deduction is applicable. Actual professional tax paid by employee or ₹2,500 per annum, whichever is lower, given for all employee, no matter employee is government or private. अगर प्रोफेशनल टैक्स उन्होंने पे किया है तो उन्होंने ये डिडक्शन लेना है, नहीं पे किया तो भी पे करना है और डिडक्शन लेना है, क्योंकि ये जॉब लगने की खुशी वाला टैक्स है, देना तो पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, कायदे से देना पड़ेगा. एंड अलाउड इज actual amount paid by employee as professional tax or 2,500 per annum, whichever is lower. So there are 3 deductions, students. Number 1, we have seen standard deduction, which is ₹50,000 per annum. Number 2 is entertainment allowance under section 16(2), applicable only for government employee. पहले पूरा taxable करेंगे, ऐड करेंगे gross salary में, और बाद में डिडक्शन देंगे रूल के हिसाब से as least of below 3. Actually ये received absolute amount of ₹5,000 and 20% or 1/5 of basic salary. उसके साथ तीसरा डिडक्शन हमें देना बेटा 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इफ पेड बाय एम्प्लॉय अलाउड एज लीस्ट ऑफ बिलो टू. नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट ऑफ पीटी पेड बाय एम्प्लॉय, एंड नंबर 2, ₹2,500 पर एनम whichever is lower. ये दो तरह से हम ये डिडक्शन दे सकते हैं बेटा. और याद रखिए, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का है लेकिन दे रहा है एम्प्लॉयर, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर इज नथिंग बट एज अ परक्विजिट, एज अ पर्क. तो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई पेड बाय एम्प्लॉयर, ये प्रोफेशनल टैक्स है एम्प्लॉय का, पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो ये क्या हुआ? ये परक्विजिट हुआ. एंड दिस परक्विजिट इज फुली टैक्सेबल no matter how much it is paid by the employer. तो पहले इसको ऐड करो बेटा टैक्सेबल परक्विजिट में, and then you can take the deduction as per rule, that is either ₹2,500 पर annum. अब यहाँ पे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय तो नहीं आती, पहले आपने ऊपर जितना पे किया उतना ऐड किया, और नीचे डिडक्शन आप ज्यादा से ज्यादा 2,500 पर annum दे सकते हैं. दो इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देखा जाए तो डिडक्शन मिला नहीं. कैसे? क्योंकि आपने ऊपर ऐड किया 2,500 और नीचे 2,500 माइनस किया, मतलब आपको डिडक्शन मिला नहीं. But yes, government has got the amount because either it is paid by you or by employer. It is none of their concern. They have received their professional tax and obviously they are in profit, you can say. But आपके लिए ये डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पे नहीं किया, ये पे किया एम्प्लॉयर ने. तो पहले टैक्सेबल परक्विजिट बोल के ऐड कीजिए और बाद में नीचे ग्रॉस सैलरी से माइनस कीजिए. As simple as that. So we have seen 3 deductions, students. Number 1, standard deduction applicable for all employee, ₹50,000 per annum. Number 2, entertainment allowance. Two things in section 16(2), if employee is government, then only it is applicable as per rule, and that is actually received absolute amount of ₹5,000 per annum or 20% or 1/5 of basic salary. ये तीनों में से जो लोअर है वो माइनस करेंगे. पहले जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया उतना ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी में, पूरा टैक्सेबल बताएंगे, और बाद में डिडक्शन देंगे 16(2) का ग्रॉस सैलरी के बाद. लेकिन एम्प्लॉई गवर्नमेंट रहा तो, प्राइवेट एम्प्लॉई है तो ऊपर ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी में और नीचे डिडक्शन में लिखेंगे नील, बिकॉज entertainment allowance deduction for private employee under section 16(2) is not at all applicable. And last but not least, that is deduction under section 16(3), professional tax or tax on employment. It is paid by employee, then allowed as deduction as amount paid by employee or ₹2,500 per annum, whichever is lower. And if professional tax of employee paid by employer, then first add into taxable perquisite and then deduction can be given from gross salary under section 16(3). मतलब ये केस में लगभग exemption नहीं मिलता if professional tax of employee paid by employer is given. So these are only the 3 deductions, my dear. I hope it is very helpful while solving the problems and you are enjoying them. Next we are going to see these deduction, that is deductions from GTI, deductions from gross total income, or deduction under section 80C to 80U, or deductions from, it is called as चैप्टर 6A. तो ये डिडक्शन हमें देखने हैं. तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय बहुत सारी सेविंग करता है, असेसी बहुत सारी सेविंग करता है, मे बी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, फिक्स डिपॉजिट,
ट्यूशन फीस ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन, ये सारे डिडक्शन हमें यहाँ पे देखने हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये सारे टोटल इनकम में से भी माइनस कर सकते हैं आप, सैलरी इनकम में से भी माइनस कर सकते हैं। सो ऑल दीज डिडक्शंस विल बी द फोकस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू गॉट द 3 डिडक्शंस फॉर सैलरी इनकम। नंबर 1 दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). नंबर 2 entertainment allowance or that is for 16(2) and divided into government employee and private employee। और तीसरा डिडक्शन हमने देखा जॉब लगने की खुशी वाला टैक्स, that is professional tax or tax on employment। So with this I'm concluding this particular lecture, short lecture of 10 minutes only. In the next lecture we are going to see deductions from GTR or deductions from under section 80C to 80U. Thank you.